Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, this week we are back with another session and we have started discussing the previous year questions and we are starting from the very beginning, from the very scratch. So we'll be discussing previous year questions for the year 2011 in these sessions and I'll be discussing the passages that were given to the aspirants in the exam itself. But before we begin guys, I would like to inform you about a comprehensive guidebook for your preparation. Now, this guidebook can help you to prepare for your strategy, to prepare for your sources, and to prepare for your syllabus. Everything that you need to know about every subject that there is in the CSAT is completely and comprehensively discussed in this course book. So go download this book. This book is absolutely free. You can download it from the description of the video and you can get benefited from it. So this book is a comprehensive guidebook for your preparation for your CSAT exam and it will help you to prepare your journey ahead. So go download this book. The link is given in the description of the video and this is absolutely free of cost, right? So let's begin with the session today. So we have level 2 passages today with us and we'll be discussing them one by one here in the session itself. So first we need to understand the questions, right? Always look at the questions first. That's what I've taught you all along. Look at the questions and then look at the passage to understand what has been asked. So first is, what is the central focus? So we basically have to find the central theme of the passage. And second question is, what is the purpose of maintaining the continuity of forested landscapes and corridors? What is the purpose of maintaining the continuity? We have to find the purpose. So three options are given. We'll see that, but we'll read the passage first. So let's start with this. Ecological research. So basically research which is based on ecology, right? जो आपके environment है, आपके आसपास जो ecological systems हैं, तो ecological research over the last quarter of the century has established the deleterious effects of habitat fragmentation due to mining, highways, एंड सच अदर इंट्रूजन्स ऑन फॉरेस्ट. तो उसने क्या कह रहा है भाई, पिछले सदी के आखिरी 25 सालों में, लास्ट क्वार्टर में इकोलॉजिकल रिसर्च से पता चला है कि बहुत ही ज़्यादा डिलीटीरियस इफेक्ट्स हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के. हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन मतलब अगर मान लो एक फॉरेस्ट है, अगर उसको आप फ्रेगमेंट कर दो, मतलब हिस्सों में बांट दो कि यहाँ से ये हाईवे निकल गया, उधर से ये रोड निकल गया, या वहाँ पे ये लोग रहने लग गए इस एरिया में, तो उससे क्या होता है, जो बड़ा एरिया होता है हैबिटेट का वो बट जाता है छोटे हिस्सों में और उससे बहुत बुरा प्रभाव होता है किस पे, इकोलॉजी पे, मतलब पूरे वहाँ पे इकोलॉजिकल सिस्टम पे, राइट. सो इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट देयर हैव बीन डिलीटेरियस इफेक्ट्स ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू माइनिंग की वजह से, हाईवेज की वजह से, ऐसे इंट्रूजन मतलब जो लोग जंगल के एरिया में इंट्रूड कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे आके अपना कब्जा जमा रहे हैं. When a large block of forests gets fragmented into smaller bits, the edges of all these bits come into contact with human activities, resulting in the degradation of the entire forest. बिल्कुल सही कह रहे थे, ये मैं आपको बता रहा था कि जब एक बड़ा जंगल का हिस्सा जब बढ़ जाता है छोटे हिस्सों में, तो जो एजेस होते हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अब ह्यूमन एक्टिविटी मतलब हाईवे बना रहे हैं, वहाँ पे रोड रोलर चल रहा है, वहाँ पे मशीन चल रही है, तो उससे ऑब्वियसली जो आसपास का एरिया, फॉरेस्ट एरिया, उस पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है. So when a large block of forests gets fragmented into smaller bits, the edges of all these bits come into contact with human activities, resulting in the degradation of the entire forests. ठीक है, पूरे फॉरेस्ट पे असर पड़ता है, डिग्रेड होता है. कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉरेस्टेड लैंडस्केप्स एंड कॉरिडोर्स, ये उसने क्वेश्चन पूछा था ना, कॉन्टिन्यूटी की क्या पर्पस क्या है. सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉरेस्टेड लैंडस्केप्स एंड कॉरिडोर्स गेट्स डिसरप्टेड, affecting several extinction prone species of wildlife. तो सर जो एक्सटिंक्शन प्रोन मतलब वो प्रजातियां जो एक्सटेंट होने के कगार पे हैं, उनको भी इस चीज से प्रभाव पड़ता है. सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉरेस्टेड लैंडस्केप्स एंड कॉरिडोर्स गेट्स डिसरप्टेड मतलब वो खराब हो जाते हैं, फॉरेस्टेड लैंडस्केप और कॉरिडोर्स मतलब जहाँ पे जो जानवर हैं जो ट्रैवल करते हैं, जो मूव करते हैं, वो हिल जाते हैं, मतलब डिसरप्ट हो जाते हैं, अफेक्टिंग several extinction prone species of wildlife. Habitat fragmentation is therefore considered the most serious threat to biodiversity conservation. कि biodiversity conservation का सबसे serious threat है
क्या आपका हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। नो एडहॉक मतलब जो टाइम टू टाइम, जो मतलब सिर्फ कुछ समय के लिए। एडहॉक ग्रांट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स टू माइनिंग कंपनीज कपल्ड विद रैम्पेंट इलीगल माइनिंग इज एग्रेवेटिंग दिस थ्रेट। और माइनिंग से और अंधे तरह से माइनिंग करने से इस जो ये है ना बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन कंजर्वेशन, इस पे और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो उसने पूरे बताया कि कैसे लोगों की वजह से, ठीक है, जंगलों पर प्रभाव पड़ता है। सो व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ दिस पैसेज? इलीगल माइनिंग इन फॉरेस्ट्स, एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ नेचर या डिसरप्शन ऑफ हैबिटेट। तो आई थिंक वी कैन फेयरली क्लियरली से दिस इज अबाउट डिसरप्शन ऑफ हैबिटेट। देखो सिर्फ पूरा पैसेज सिर्फ इलीगल माइनिंग पे फोकस नहीं कर रहा, इसमें ज्यादा लोगों की इंट्रूजन की बात हो रही है, राइट। देन एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, के भाई वाइल्ड लाइफ का खात्मा करना, खात्मा नहीं हो रहा, डिस्टर्बेंस हो रही है उन पे। क्या हो रहा है? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में प्रॉब्लम आती है। और कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात कर रहा है या डिसरप्शन ऑफ हैबिटेट की बात कर रहा है? उसको बचाने की बात नहीं की है उसने, उसने बात की कि कैसे हैबिटेट को डिसरप्ट किया जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। सो दैट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉरेस्टेड लैंडस्केप्स एंड कॉरिडोर्स? उनको कंटिन्यू रखने के पर्पस क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उससे बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व होती है, यस। मैनेजमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, नहीं, मिनरल रिसोर्सेज की कहीं बात नहीं हुई है। ग्रांट ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। अब ये देखते हैं, देखो पहले हमें ये देखना है, एलिमिनेट करो, सेकंड वहां पे नहीं है ना, तो जिस इस ऑप्शन में सेकंड है उसको एलिमिनेट कर दो। तो ग्रांट ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज, इसकी ये पर्पस है कॉन्टिन्यूटी के लिए? नहीं। सो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन नंबर ए। सो इस तरह से एलिमिनेट करके अपने ऑप्शंस को ढूंढना होता है गाइस हमेशा, एंड दैट विल लीड यू टू द बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल इन योर एग्जाम, ठीक है। चलो एक और पैसेज डिस्कस करते हैं गाइस। तो पहले हमें क्वेश्चन देखना है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू एज द रीजन फॉर मैंस मिजरीज? कि भाई क्या कारण है इंसान के दुख दर्दों का, ये उसने पूछा है। तो विच अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू एज द रीजन फॉर मैंस मिजरीज? कि भाई इंसान के जो दुख दर्द हैं जीवन में उनका सही कारण क्या है, एक तो वो पूछा है उसने, एंड अजम्पशन दी है उसने, वो हमें बताना है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। चलो पैसेज पढ़ते हैं पहले। द मिजरीज मिजरी क्या होता है? दुख दर्द परेशानियां, राइट, मिजरी। द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी क्योर्ड बाय फिजिकल हेल्प ओनली। सिर्फ फिजिकल हेल्प से, मतलब किसी की फिजिकली मदद करने से दुनिया में जो दुख दर्द है उनको कम नहीं किया जा सकता। सो द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी क्योर्ड बाय फिजिकल हेल्प ओनली अंटिल मैंस नेचर चेंजेस। क्या जब तक इंसान का नेचर नहीं बदलेगा, उसकी प्रवृत्ति नहीं बदलेगी, सो अंटिल मैंस नेचर चेंजेस हिज फिजिकल नीड्स विल ऑलवेज अराइज। जब तक वो अपना नेचर नहीं बदलेगा उसकी फिजिकल नीड्स हमेशा उसके सामने खड़ी रहेंगी, दे विल ऑलवेज अराइज एंड मिजरीज विल ऑलवेज बी फेल्ट, और हमेशा दुख दर्द होगा। एंड नो अमाउंट ऑफ फिजिकल हेल्प विल रिमूव देम कंप्लीटली, और किसी भी तरह की फिजिकल हेल्प उन दुख दर्द को दूर नहीं कर सकते जब तक हम अपनी नेचर को नहीं बदलते। ये कहना चाह रहा है वो। द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज टू मेक मैनकाइंड प्योर। कि सिर्फ क्या सॉल्यूशन बचा है कि इंसानियत को प्योर बनाया जाए। इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ इविल। जब तक हम इग्नोरेंट हैं तब तक हम गलत करते रहते हैं दुनिया में। तो इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ इविल एंड ऑफ ऑल द मिजरी वी सी, और सभी दुख दर्द का कारण है इग्नोरेंस। Now let men have light, let them be pure and spiritually strong and educated। कि भाई उनको रोशनी दिखाओ, उनको प्योरिटी दिखाओ, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाओ और एजुकेटेड बनाओ। देन अलोन विल मिजरी सीज इन द वर्ल्ड। सिर्फ तभी दुख दर्द कम हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। वी मे कन्वर्ट एवरी हाउस इन द कंट्री इनटू ए चैरिटेबल असाइलम। ठीक है, बेशक हम हर देश में चैरिटी करना, मतलब हर घर से, देश में हर घर से चैरिटी करना शुरू कर दें। वी मे फिल द लैंड विद हॉस्पिटल्स, और चाहे हर जगह हॉस्पिटल बना दें, बट ह्यूमन मिजरी विल कंटिन्यू अंटिल मैंस कैरेक्टर चेंजेस। और जब तक हम अपने प्रवृत्ति को, नेचर को नहीं बदलते, तब तक चाहे कुछ कर लो फिजिकली, चाहे हॉस्पिटल बना लो, कितने दान दक्षिणा कर लो, लेकिन दुख दर्द दूर नहीं होंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं हमें अपने आप को अंदर से बदलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्पिरिचुअली और एजुकेटेड और प्योरिटी पे आना पड़ेगा। तो हमें अब देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। द पुअर इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। नो, कि इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस की वजह से दुख दर्द है, नहीं। रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ मैन टू चेंज हिज कैरेक्टर, कि वो नहीं करना चाह रहा अपना कैरेक्टर चेंज। द एब्सेंस ऑफ फिजिकल एंड मटेरियल हेल्प फ्रॉम हिज सोसाइटी, वो तो है, लेकिन दुख दर्द कम नहीं हो रहे। एवर इंक्रीजिंग फिजिकल नीड्स ड्यू टू चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर, जो फिजिकल नीड्स हमारी बढ़ती जा रही हैं,
तो इस ये कारण है, असली कारण है जो दुख दर्द है इंसानों का। उसने क्लियरली बोला भी है, हिज फिजिकल नीड्स विल ऑलवेज अराइज एंड इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ इविल, उसने ये बोला है, राइट। तो व्हाट इज द मेन रीजन? इग्नोरेंस। तो इंक्रीजिंग फिजिकल नीड्स, एब्सेंस ऑफ मटेरियल हेल्प, ये नहीं होगा, रिफ्यूजल ऑफ मैन पार्ट टू चेंज हिज कैरेक्टर, ठीक है। अब देखो, ये दोनों तो हम एलिमिनेट कर सकते थे गाइस, ए और सी। बी और डी में कंफ्यूजन था। द रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ मैन टू चेंज हिज कैरेक्टर एंड एवर इंक्रीजिंग फिजिकल नीड्स ड्यू टू चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ठीक है गाइस, अच्छा ये अब हम एलिमिनेट करते हुए समझ रहे हैं गाइस, नहीं डी नहीं, इसका सही ऑप्शन बी होगा, क्योंकि देखो एवर इंक्रीजिंग फिजिकल नीड्स तो उसने दिया हुआ है, बट यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर की बात कहीं नहीं की उसने। सो ये मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। तो अब सही इसका आंसर ये देखो उसने दिया ना, इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ evil and of all the misery we see. So refusal on the part of man to change his character, मतलब ignorant होना। तो ये वो कह रहा है कि भाई जब हम चीज़ों को नहीं समझ रहे, तो रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ मैन टू चेंज हिज कैरेक्टर मतलब इग्नोरेंट होना, जब हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाह रहे, तो दैट इज द रियल रीजन फॉर मैन्स मिजरीज। ये है सही आंसर। सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर, राइट। अब ऐसे होगा गाइज, आप ऑप्शन पढ़ के आपको और बेटर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो एलिमिनेट करके चला करो हमेशा, ठीक है। और सेकंड, उसने हमें दो असम्पशन दिया, हमें देखना बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। द ऑथर गिव्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू फिजिकल एंड मटेरियल हेल्प इन इरेडिकेटिंग ह्यूमन मिजरी, नहीं, वो तो कह रहे हैं कैरेक्टर बदलने से होगा, चाहे कितने हॉस्पिटल बना लो, कितनी दान दक्षिणा कर लो, दुख दर्द दूर नहीं होगा। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो हम ये वाला वन वाला एलिमिनेट कर सकते हैं, और यही वाला कर दोगे तो ये आपके पास आपका आंसर अच्छा नहीं नहीं, रुक जाओ, हो सकता है कि नीदर भी हो सकता है अभी, लेकिन ये वाले तो एलिमिनेट हो गए, मतलब ऑप्शन ए और सी तो एलिमिनेट हो गया। सेकंड, चैरिटेबल होम्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा कैन रिमूव ह्यूमन मिजरी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नो गाइस, दे कैन नॉट रिमूव मिजरी का तो उसने बात ही की है कि भाई ये तो कैरेक्टर से चेंज होगा, तो बोथ आर इनवैलिड, सो नीदर वन नॉर टू इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा था, बट ऑप्शन देख के ध्यान से करना होता है आपने ऑप्शन को एलिमिनेट करके। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस इन द एक्चुअल एग्जाम। तो गाइज, अगर आपको हमारे सेशन, अगर हमारा तरीका पसंद आ रहा है, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन आर कोर्स विच इज ओनली डेडिकेटेड टू सी सेट प्रेपरेशन। सिर्फ सी सेट की प्रेपरेशन है इसमें, और विद इन 100 आवर्स वी आर प्रॉमिसिंग टू make you ready for CSAT. So 100% UPSC preparation in just under 100 hours. Now in this course we are providing you concept classes along with downloadable PDFs. There are separate test series, sectional test, full length test for all the subjects. There will be weekly live doubt sessions conducted by the faculty members to help you out, and then there will be live revision classes before the exam that will help you to understand better and prepare better for your exam. You know the faculty members, so if you want to join us in this course, the link has been given in the description of the video. Go download, go check it out and come join us in this course and get benefited from the expert faculty members in the course itself. So thank you so much for this session, guys. I'll see you again tomorrow with another session for previous year questions, and we'll see what sort of passages used to be given to the aspirants in the previous year exams, and we'll continue this journey as far as your exam is concerned. So thank you so much, and if you have any doubts, guys, you can call us on this number during the office hours, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So thank you once again, guys, for your precious time, for your receptiveness, and if you like the session, don't forget to press the like button. If you are new here, please subscribe to the channel, and if you want the PDF of these and many such sessions, you can download, you can join our Telegram channel. The link has been given in the description of the video. So thank you so much once again, and I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and happy learning to all of you. Thank you once again, guys.